So Hare Krishna, has anybody got any questions? हरे कृष्णा, किसी के पास कुछ प्रश्न है? प्रभु, we have got 3 questions, but I thought first, before we go to those questions, we can ask the general audience today, do it in the reverse order. If somebody has any questions, then we can first hear that. हमारे पास 3 सवाल आए हैं, मगर हम चाह रहे थे कि पहले आप लोगों में से कोई सवाल अगर करना चाहता है तो पहले आप अपने सवाल पूछ सकते हो, उससे भी हम शुरू कर सकते हैं, उसके बाद हम उन 3 प्रश्नों पे जा सकते हैं। प्रभु जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, हम आपको सुन नहीं पा रहे ठीक से। यस प्रभु, गो अहेड। Yes, Prabhu, go ahead. Can you hear us? I can hear you, Prabhuji. I'm not sure if you can hear me. Now we can hear you. Yes, Prabhu. Okay, thank you very much, Prabhuji. Right, Hare Krishna, Dandavad Pranam, Jai Srila Prabhupada. All glories to you, Prabhuji. Prabhuji, I've seen the Mangalarti early morning program in the 3 different camps, right? Regard like the ISKM camp, the HKM camp, and the ISKCON camp. We match with the ISKCON camp very well. The HKM camp is off by a lot. So, is there any particular documentation given by, right, in the scriptures or by Acharya that this is the sequence in which we should do the full morning program? Right? That's it. Okay, great. So I hope Prabhu has heard the question. I will just, shall I try to translate it, Prabhu, just Yes, for others? please. Yes, Prabhuji. Thank you very much. No, not required. Okay. So this is an internal question with devotees, since the public program. Okay, Prabhu. Sorry, Prabhu. Okay, Prabhu. Yeah. We'll have it. I'll go offline on this. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So better the question that you already have, we can start with that. Okay, Prabhu. Can you see my screen? Can you all see my screen? Can you make it bigger? Yes, Prabhu. Is it okay, Prabhu, now? Yes. Yeah. The first question is, as per Bhagavad Gita, one should follow his karma and their caste duties to fulfill the overall goal. Arjuna was convinced to fight the battle to fulfill his caste duties. It provides justification for the war and killing. How to interpret this in a logical way, since many of us wrongly interpret that the Bhagavad Gita promotes violence? मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। भगवत गीता के अनुसार समग्र लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्म और उनके जाति कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अर्जुन को अपने जाति कर्तव्यों को पूरा करने के लिए युद्ध लड़ने के लिए राजी किया गया था। यह युद्ध और हत्या का औचित्य प्रदान करता है। इसकी तार्किक तरीके से व्याख्या कैसे करें, क्योंकि हम में से कई लोग गलत तरीके से व्याख्या करते हैं कि भगवत गीता हिंसा को बढ़ावा देती है। So who's translating? You're translating, huh? Yes, Prabhu. Who's working the screen? I am navigating the screen. Yes, Prabhu. Oh, you're in the sky. Yeah. So, okay, this Bhagavad Gita starts off in the battlefield. ये भगवत गीता शुरुआत इसकी युद्ध स्थल से होती है। Now, before coming to the scene of war, ये युद्ध स्थल में आने से पहले Krishna and the Pandavas made a lot of moves for peaceful negotiation. उसके पहले कृष्ण जी ने और पांडव लोगों ने बहुत कोशिश की
कि संधि से इसका समाधान निकले जिससे युद्ध न करना पड़े, to avoid this war. इस युद्ध को अवॉइड करने के लिए। But Duryodhan and Pati, especially Karna and the others, they were bent on having this war. लेकिन दुर्योधन और खास करके कर्ण इस चीज पे अड़े हुए थे कि नहीं, हमें युद्ध करना है। So you can go to Bhagavad Gita 128. Even at this point, Arjuna was not very keen in fighting this war. इवन इस समय पर अर्जुन बहुत उत्सुक नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए। Can you read on these verses from here? Just the verses, huh? जस्ट द Translation. ट्रांसलेशन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। Carry on. मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। Should I continue, Prabhu? Yes, until the end of the chapter. Okay. यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म से में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृषनिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं।
Devki Mataji, you want to read the remaining part? Sure, Prabhu. Yes, please go ahead. Avanchit Santan. Prabhu, also could you grant me the co-host access? I think I Avanchit have already Santano. given the co-host access to you. Yeah. ओके आई कांट सी इट एनीवेज अवंचित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पीतर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पापकर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। That's the last श्लोक। ये आखिरी श्लोक था। Yes. Yes. I'll just check Prabhu, one minute. I think I have given already access to Mataji. Yes, Mataji, I have given you the host access. Thank you, Prabhu, Prabhu। over to you. Prabhu, can you hear us? Yes. Yes, Prabhu, we have finished reading the chapter. Okay, can you go to 2:7? Yes, Prabhu, I'm on 2:7. अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। So you see how Arjuna is in a confused stage. तो आप देख सकते हैं कैसे अर्जुन का मन विचलित है। So he doesn't know what to do, what not to do. उन्हें पता नहीं क्या करना है और क्या नहीं करना है। So he is surrendering to Krishna and asking him to instruct him. इसलिए वो कृष्ण जी के पास शरणागत हो गए हैं और बोल रहे हैं कि आप कृपया मुझे उपदेश दें। So this is the position of Arjuna. He is lost. तो ये अर्जुन की स्थिति है, वो खो चुके हैं, खो गए हैं। So Krishna, evidently who is God, कृष्ण जी जो भगवान है, and now he is also going to be the guru of Arjuna. और इस समय पे वो अर्जुन के गुरु के रूप में भी अपना कर्तव्य करेंगे। Guru and God will never put the Shishya into trouble. That is not the business of Guru. गुरु और भगवान कभी भी शिष्य को खराब परिस्थिति में नहीं डालेंगे। God also will never do bad thing for anybody. भगवान भी किसी के लिए कभी कुछ खराब नहीं करेंगे। So this is the position, of a person who is, in fact, a well-wishing friend. Krishna says you can go to 5:29.
मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। So here he says he is the best friend of all, well-wisher of all living entities. यहाँ प्रभु कहते हैं कि वो समस्त लोगों के सबसे अच्छे दोस्त हैं And one who is in this position attains peace from the pangs of material miseries. और जो इस स्थिति में है वो भौतिक जगत की जो भी परेशानियां हैं उससे मुक्त होते हैं। In other words, anyone who is guided by Krishna will attain peace from all problems. इसलिए जो भी कृष्ण के आगे शरणागत हैं वो सारे भौतिक जगत से सारी चीजों से मुक्ति मिलेगी और उनको शांति मिलेगी। So one who goes to Krishna cannot be the loser. जो कृष्ण जी के पास जाते हैं वो लूजर नहीं हो सकते, वो कुछ भी खो नहीं सकते। Huh? So then immediately Krishna, you go to 2:11. श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। Can you read the purport? जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षतः मूर्ख कह कर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाजनीति की उपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। So you see, the first thing he told him that you are crying for something is not worth crying because the soul cannot be killed. तो सबसे पहले भगवान ये समझा रहे हैं कि आप जिस चीज के लिए रो रहे हो उस चीज के लिए रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नश्वर है। वो कभी भी वो खत्म नहीं होती शरीर की तरह। And Arjuna's duty is a Kshatriya. और अर्जुन की ड्यूटी है वो तो क्षत्रिय है। A Kshatriya's duty is to give protection from others getting hurt. क्षत्रिय का धर्म है कि वो और लोगों को बचाए और लोगों को प्रोटेक्ट करे। And also to uphold dharma. और धर्म की स्थापना करने में मदद करे। Just like in any country now, you don't have any protection from a strong, let's say, police or military force, then there will be anarchy in the country. जैसे आप देखिए किसी भी देश में अगर आपके पास
वहाँ की पुलिस या वहाँ की आर्मी आपको प्रोटेक्ट नहीं करे, आपको बचाए नहीं, तो वहाँ की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, लोग एक दूसरे से लड़ेंगे and then nobody will be happy and can live peacefully. और कोई भी सुखी तरह से जीवन का प्रवाह नहीं कर सकेगा। So to battle violence, you need violence. तो इसलिए हिंसा को रोकने के लिए आपको हिंसा करनी पड़ेगी। Therefore, the Varnashram system is given by God Himself. इसलिए भगवान ने खुद ये वर्णाश्रम योजना को स्थापित किया है। The head of the body is supposed to be the Brahmanas who can give spiritual directions. Huh? जो मस्तक है वो ब्राह्मण का स्वरूप है जो कि आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। So to protect the Brahminical order, you need the Kshatriyas. इसीलिए उन ब्राह्मण लोगों को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए आपको क्षत्रिय लोगों की जरूरत है। And then you need the stomach, that the Vaishyas, to produce the necessary food. और जैसे पेट है, पेट का स्वरूप है, इसलिए आपको वैश्य लोगों की जरूरत है क्योंकि वो खाना प्रदान करते हैं। And then you have the legs, which is giving labor for everybody. That's the Sudras. और जो पैर से बोधित किया जाता है वो आपके शूद्र हैं जो बाकी सब कार्य कर रहे हैं ये सबको सही तरह से उत्पादन करने के लिए। So in this way, the whole society is maintained. इस तरह से सारा समाज चल रहा है। Yeah, you can't only have all Brahmins and no others. That also doesn't work. Huh? ऐसा भी नहीं कर सकते कि सारे समाज में सिर्फ ब्राह्मण ही हो। You cannot have the fingers all same length, you know. सारी उंगलियां एक बराबर तो नहीं हो सकती। So therefore, we have to have everybody to cooperate to therefore maintain peace and prosperity in the society. इसलिए ये सब लोगों को साथ मिलके चलना पड़ेगा ताकि समाज में शांति बरकरार रहे। Otherwise, the whole world, nobody can live peacefully. अदरवाइज सारे संसार में कोई भी शांति से रह नहीं सकेगा। Huh? Is it not? है कि नहीं? So then Arjuna was taught this whole message in this whole Bhagavad Gita. इसलिए अर्जुन को सारे भगवत गीता में ये शिक्षा बताई गई, समझाई गई। So his duty is to fight. So Krishna told him, you are a Kshatriya, you must fight. You can go to 8:7. हम 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में जा रहे हैं। Hare Krishna Prabhu, should I continue reading or we ask other volunteers? Yeah, we if can they ask can read? others too. Yes, Yeah. yes, we'll ask others to read. Hare Krishna. हरे कृष्णा। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो अपना हैंड रेस करिए और पढ़ सकते हैं आप लोग। विश्वजीत प्रभु आप रीड करिए। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हरि बोल। Can you go to 3:30? अब हम तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में जा रहे हैं। Hare Krishna Mataji. Can Neeta Mataji come and read? She was telling me last time she did not get the chance to read. Neeta Mataji. Yes, Prabhuji. हाँ, 1 मिनट माताजी, मैं आपके लिए बड़ा कर दे रहा हूँ स्क्रीन, आप पढ़ सकती हैं। जी। हाँ, पढ़िए माताजी। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करे। He has to go nearer to the mic. हाँ, थोड़ा माताजी आप माइक के करीब आके बोलिएगा तो आपकी सुनाई देगी बात आपकी। बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। जी जी मैडम, मैं आवाज बढ़ा दिया है। अभी हाँ रीड करूं, रिपीट? हाँ, एक बार फिर से पढ़िए, जस्ट रिपीट। अतः हे अर्जुन,
अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। बहुत अच्छे। Can read 335. अब हम तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में जा रहे हैं। माता जी ये पढ़ सकती हैं आप ये वाला भी? हाँ, अपने नियत कर्मों। अपने नियत, हाँ जी प्रभु जी। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। Can you read the purport? इसका तात्पर्य पढ़ेंगी माता जी? आपको दिख रहा है ठीक से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे वह विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इसी तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के लिए नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। हरि बोल, बहुत अच्छा। Very good. Can you go to 1848? अब हम 18 अध्याय में 48वें श्लोक पे जाएंगे। मैं एक बार देखता हूँ और कौन कौन है हमारे साथ। प्रभु उषा माता जी वुड लाइक टू रीड नाउ। उषा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी? हाँ ठीक है प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। यदि से ही ना? हाँ माता जी, पढ़िए। हाँ, यदि तुम मुझसे भावना भवित होंगे तो मेरी कृपा से तुम
बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। तात्पर्य पढ़ना है? एक मिनट रुक जाइए। हरि बोल। Yes, Prabhu. She read the translation. So can you read the translation? The translation the Purport. purport. Okay. हाँ माता जी, तात्पर्य पढ़िए। मैं थोड़ा हाँ, बड़ा कर देता हूँ और आपके लिए। हाँ, एक मिनट हाँ। दीजिए मेरे को। पूर्ण कृष्ण हाँ माता जी, पढ़िए। एक मिनट। हाँ, पूर्ण कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतः किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए युक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर की भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव यह सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होकर कर्म अंतर से करता है, वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। बहुत बढ़िया। हरि बोल। हरे कृष्ण। Can you go to 4:8? अब हम चौथे अध्याय में 8वें श्लोक में जाएंगे। बड़े करे और कोई पढ़ना चाहता है? मयन, आप हैं, पढ़ना चाहते हैं? मयन, अंकिता, कोई है? जी मैं पढ़ता हूँ। थैंक हाँ। हरे कृष्ण। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। So you see, God comes down for a purpose. तो इसलिए आप देखिए, भगवान जब प्रकट होते हैं तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं, किसी to पर्पस के लिए protect आते हैं। to protect the pious, जो हमारे पायस लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको those प्रोटेक्ट who are करने के लिए। following, those who are devotees, जो भक्तगण हैं उनका उद्धार करने के लिए। and those who are miscreant, the demons he kills. और जो दुष्ट लोग हैं, राक्षसगण हैं, उनका विनाश करने के लिए। And also to re-establish religious principle. और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। So God comes down for this purpose. तो इसलिए भगवान ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आते हैं, किसी कारण के लिए आते हैं। So here in this case you see Duryodhana and Pati, they were very adharmic. तो आप देख सकते हैं अभी दुर्योधन और उनके जो संबंधी थे वो बहुत ही अधर्म करते थे। I'm sure you know Mahabharata, how many wrong things they all did. आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा महाभारत में कितनी गलत चीजें की उन लोगों ने। They wanted to even disrobe Draupadi. वो द्रौपदी तक का वस्त्र हरण करना चाहते थे। Yes. हाँ। So many adharmic things they did. कितने अधर्म और कितने पाप कर्म किए उन लोगों ने।
So therefore, God comes down to re-establish religious principle like this. इसलिए इस तरह से भगवान अवतीर्थ होते हैं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए. Huh? Therefore, in the 11th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna said, इसलिए 11वें अध्याय में कृष्ण जी ने कहा है, 11:32 you read. हम 32वें श्लोक में जाएंगे अभी. मयन आप दोबारा से पढ़ सकते हैं. भगवान ने कहा, जी, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ. तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे. Next verse. अगला श्लोक हम पढ़ रहे हैं अब. अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो. अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो. ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हैं सव्यसाची. तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो. Next verse. हम अगले श्लोक में जा रहे हैं अब. 34वें श्लोक में. द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं. अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो. तुम केवल युद्ध करो. युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे. बहुत अच्छी. So this is all due to the, you go to 11:31. Krishna is answering to Arjuna's question here. आप देखिए कृष्ण जी अर्जुन के प्रश्न का उत्तर यहाँ दे रहे हैं. He's saying after Arjuna saw the universal form, you know, जब अर्जुन ने कृष्ण जी का विराट रूप देखा. can you read this verse? The 31 words, right, प्रभु? Yes, yes. हाँ, मयन आप इसको पढ़ सकते हैं. Akshay, you can read. अक्षय आप पढ़िए. यस. हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं. मैं आपको नमस्कार करता हूँ. कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो. आप आदि भगवान हैं. मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है. So you want to know what's Krishna's mission? हाँ, तो वो ये जानना चाहते हैं कृष्ण जी क्यों आए हैं, क्या You उनका understand? क्या कारण है जो वो आए हैं. You follow? So समझ सकते हैं आप. So Krishna is God, you know, he's for a purpose. हाँ, कृष्ण जी भगवान है, वो किसी कार्य को संपन्न करने के लिए आए हैं. That is to deliver the pious, to annihilate the miscreants, and to re-establish religious principles. वो ये है कि वो भक्तगणों को प्रोटेक्शन देंगे, जो दुष्कर्मी हैं, जो राक्षस हैं, उनका विनाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे. That's why Arjuna is used as an instrument here. Nimitta matrena here. इसलिए अर्जुन को तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया गया है, वो निमित्त मात्र है. Not only that, after that Krishna is showing his topmost form to Arjuna to show his God. और इतना ही नहीं, कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को ये दिखाने के लिए कि वो परम परमेश्वर भगवान है. You understand? So Krishna, you can go 11:52, you know. Okay. Sorry, you can go to see 11:51. In the Bhagavad Gita, Prabhu, 11:51. The same chapter, Yeah. 11:51. Okay. Oh no, 11:50. You see, 11:50. अब हम 11वें अध्याय के 50वें श्लोक में जा रहे हैं.
अक्षय आप Shall I पढ़ेंगे? read, प्रभु? Yes, please read. संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। हरि बोल। So you read that, is it what he says? तो आपने देखा, पढ़ा, क्या कह रहे हैं? Which verse is this? प्रभु, this This is is verse number 1150, प्रभु। 50. 1150. So you can see next one, 51. You read. हाँ, हम अगले पे जा रहे हैं अब 51 श्लोक पर। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। So you see here, you are dealing with God. तो आप देख सकते हैं यहाँ हम भगवान से संपर्क बना रहे हैं। So it is not that you think that he is some ordinary person, you know. ऐसा नहीं है कि ये भगवान आम इंसान है। So if God is killing or God is loving, it is the same. तो इसलिए भगवान अगर मार रहे हैं या भगवान स्नेह प्रकट कर रहे हैं, वो सब एक ही है। Can you go 1:9:39? अब हम श्रीमद् भागवतम में जाएंगे, पहले कैंटो में 9वें अध्याय में। 19 प्रभु, व्हाट इज द श्लोक? 1:9:39. 39, ओके। Yes, Prabhu, I'm on 39. Yep. मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। Let me go to the last paragraph of this. Purport, okay. Make it bigger. The last paragraph, can read. Make it bigger. Yeah, good. हाँ, अक्षय प्रभु पढ़िए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि भगवान की अहेतुकी कृपा से वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर सके। जलटर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में चक्कर लगाते हुए सभी बद्ध जीव माया के रूप में हैं या उस रूप में हैं जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है और जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया। बद्ध जीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्त्रों की तरह हैं और जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाते हैं तब उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। निर्विशेषवादी भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के इच्छुक रहता है, लेकिन भगवान के अंश स्वरूप जीवित स्फुलिंगों के लिए यह रंच मात्र भी हितकर नहीं है। अतएव निर्विशेषवादी पुनः
नीचे गिरते हैं और फिर से भौतिक रूप प्राप्त करते हैं, जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप, चाहे वह 2 भुजाओं वाला हो या चतुर्भुजी, भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में प्राप्त होता है। यह स्वरूप जो 100% आध्यात्मिक है, जीव का स्वरूप है, और उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों ओर से युद्ध किया, अपना अपना स्वरूप प्राप्त किया, जिसकी पुष्टि भीष्मदेव कर रहे हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण केवल पांडवों पर ही कृपालु नहीं थे, वे दूसरे पक्षों पर भी दयालु थे, क्योंकि उन सबों को एक ही जैसा फल प्राप्त हुआ। भीष्मदेव भी वही सुविधा चाह रहे थे और यही भगवान से उनकी प्रार्थना थी। यद्यपि भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष यह निकला कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते हुए मरता है, चाहे वह दर्शन भीतर से हो या बाहर से, वह अपना स्वरूप प्राप्त करता है। वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। हरि बोल। Can you go to 1133? Okay, while he's finding that, you can see how yogis are trying to do so many years of meditation just to get moksha. आप देख सकते हैं कि योगी कितने सालों की तपस्या करते हैं सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए। 1133 प्रभु, राइट? 1130, now text 3. टेक्स्ट, राइट। प्रत्याकृष्टम नयनम बला। Can you read That the one, प्रभु? translation? एक बार उनके दिव्य रूप पर अपनी आंखें गड़ा देने पर स्त्रियां उन्हें हटा पाने में असमर्थ होती हैं, और यदि वह रूप एक बार मुनियों के कानों में प्रवेश कर जाता है और उनके हृदयों में गड़ जाता है, तो फिर वह हटाए नहीं हटता था। ख्याति पाने के विषय में क्या कहा जाए? जिन महान कवियों ने भगवान के रूप के सौंदर्य का वर्णन किया, उनके शब्द दिव्य मोहक आकर्षण में फंस कर रह गए, और उस रूप को अर्जुन के रथ पर देखकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे योद्धाओं ने भगवान जैसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर मोक्ष लाभ उठाया। हरि बोल। Yogis are taking so much trouble to even just get a glimpse of his toes. योगी कितना कष्ट कर रहे हैं सिर्फ भगवान के चरणों का एक अंश देखने के लिए। To get out of this material world and go back to the spiritual world. इस भौतिक जगत से मुक्त होके आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। How much tapasya? कितनी तपस्या। But here, just by seeing Krishna on the battlefield and dying there, they all are going back to Godhead. पर यहाँ देखिए, सिर्फ कृष्ण जी का दर्शन किया उन्होंने युद्ध भूमि में, और उससे वो वैकुंठ जा रहे हैं। I think I prefer to die and go back now. What's the use of all these things? तो क्यों ना हम इस चीज का लाभ उठाएं कि अभी हम कृष्ण जी को सोचें, उनका दर्शन करें और सीधे हम आध्यात्मिक जगत में जाएं। So fighting in the battlefield is not some mundane violence, you know. तो इसीलिए देखिए, ये युद्ध भूमि में, इस युद्ध में जो लड़ाई हो रही है, ये कोई बेकार की चीज नहीं है। So people who don't know, they think like that. जिनको नहीं पता है वो फिर वैसा सोचते हैं इस So हिंसा के बारे में। anyone who die in front of God, they go back to the spiritual world. भगवान कृष्ण के सामने किसी की भी मृत्यु होती है तो वो आध्यात्मिक जगत में चला जाता है, प्रवेश करता है। Yes, you understand? समझ रहे हैं आप? So therefore, then Arjuna, after understanding this, he says, "No, I will do whatever you tell me." 1873 Bhagavad Gita. अब हम भगवत गीता में जा रहे हैं 18वें अध्याय में 73वें श्लोक की ओर जाएंगे। प्रभु बता रहे थे कि इसलिए
जब अर्जुन ने ये ज्ञान को समझ लिया तो उन्होंने भगवान से कहा, आप जो भी कहेंगे मुझसे मैं वो करूंगा। 79 प्रभु, राइट? 73. 73, ओके। 1873. यस प्रभु। Anyone else want to read that? हाँ, भरत जी आप हैं, पढ़ना चाहते हैं? पढ़ लेंगे माता जी, प्रभु। पढ़िए माता जी, पढ़िए। हाँ पढ़िए माता जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरि बोल। You see how Arjuna now first he say don't want to fight, correct? आपने देखा पहले अर्जुन कह रहे थे वो लड़ना नहीं चाहते हैं, सही है? हाँ, After he understand who Krishna is and what he want to do, then he became convinced. हाँ, जब उन्हें समझ में आ गया कृष्ण जी कौन है, क्या करना चाहते हैं, तब वो बिल्कुल ही कन्विंस्ड हो गए। उन्होंने बोला हाँ, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। So we are also like that. We don't know what to do, what not to do. तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हमें ये नहीं पता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। When we are guided by a proper guru, then we will also be perfect. हाँ, जब हम एक सही गुरु की कृपा में रहेंगे तब हमको ये पता चलेगा कि हमको क्या करना हमारे लिए उचित है और क्या अनुचित है। That's why Krishna say in the Bhagavad Gita 4:34, you go and approach a self-realized soul. Shall I open that प्रभु? Yes. अब हम चौथे अध्याय में 34वें श्लोक पे जाएंगे, जहां हम देखेंगे कि माता जी आप पढ़ना चाहती हैं ये? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। If you don't have a guru, how you can go to God? अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप कैसे भगवान के पास जा सकते हैं? Yes. हाँ। And if you cannot understand this, then you will have to keep taking birth and dying and birth and dying. This is where you go on. और अगर आप ये इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो आपको बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहना पड़ेगा। So do we want to do that? Taking birth and dying and taking birth and dying? तो क्या आप ये करना चाहते हैं कि बार बार आपका जन्म हो, बार बार आपकी मृत्यु हो? Tell me. बताइए। Yes? No. हाँ? We don't want. You don't want. That's why Krishna says in 9:3 Bhagavad Gita, if you don't listen to me, Arjuna, you don't have faith, then you have to go on this cycle of birth and death. अब हम 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में जाएंगे, जहाँ कृष्ण जी बोलते हैं कि अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है तो आपके साथ क्या होगा। ये हम 3रे श्लोक पे हैं, अभी अगर आप देख सकते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। हरे कृष्ण। वापस राते what? आते रहते हैं। आते रहते हैं, हाँ? Yes? हाँ? You want to come back वापस again? आप फिर से वापस आना चाहते हैं? No.
That's why Krishna says in 1858. अब हम 18वें अध्याय में जाएंगे और 58 नंबर श्लोक देखेंगे। मच्चितः सर्व दुर्गाणि। Yes. कोई और पढ़ना चाहता है? क्षमा भरत जी, मैं पढ़ूं कोई फिर? यदि पढ़ूं? पढ़िए माता जी, पढ़िए। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बुद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगी। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। हरि बोल। Yes. हाँ, So don't get this mistaken idea that there's violence, you know. हाँ, इसलिए आप इस गलतफहमी में नहीं रहे कि ये सिर्फ हिंसा है। Going to God is very good. Either He kill you or He love you, you get the supreme result. हाँ, भगवान के पास जाना बहुत लाभदायक है, चाहे वो हिंसा के मार्ग पे हो, चाहे उनके प्रेम से हो, जैसे भी हो। God, you go to God, you cannot get anything bad, you know. हाँ, आप अगर भगवान के पास जाएंगे तो कुछ खराब तो नहीं होगा ना इसमें। Does this answer the question? हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर मिला आपको? Yes, Guruji. Thank you so much. Who asked this question? मयन प्रभु। I had asked Oh, this question. okay. You are clear now? Yes, Guruji. Okay. For the next Thank you so question. much. अब हम दूसरे इसके बाद के प्रश्न पे जाएंगे। Most of us are in our regular material jobs and routine, working somewhere or studying or working at home. What are the 2 to 3 practical tips for us for steady and serious progress in spiritual life? How can we manage both our spiritual life and regular work? मैं अनुवाद करता हूँ। हम में से अधिकांश अपने नियमित भौतिक कार्यों और दिनचर्या में कहीं न कहीं काम कर रहे हैं या घर पर पढ़ाई या काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और गंभीर प्रगति के लिए हमारे लिए 2 से 3 व्यावहारिक सुझाव क्या हैं? हम अपने आध्यात्मिक जीवन और नियमित कार्य दोनों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? So first and foremost, you must be willing to accept a spiritual master. सबसे पहला और सबसे जरूरी है कि आपको एक गुरु की शरण में आने के लिए आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मैं ये मेरे लिए जरूरी है। That is the first thing. वो सबसे पहली जरूरत है। If you don't have a guru, then it's very difficult to practice spiritual life. अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति करना या उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल है। Because we are all on the mental plane now. क्योंकि हम सब अभी मानसिक स्थिति में है, And the भौतिक mind, मानसिक स्थिति में है। and the mind not worshipping God will become our worst enemy. और हम अगर हमारे मन से हम भगवान की पूजा नहीं करें तो वो मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु होगा। So to control this very difficult mind, can you go 5, 11, 17? अब हम श्रीमद् भागवतम के 5वें कैंटो में 5:7 प्रभु, sorry 5:11. 5:17. Okay, I think I made a mistake. 5:17. 5:11. 5:11, yes, the Jada Bharat chapter. Right. 5:11, 17. Okay. Last verse.
Can someone read this? कोई और पढ़ना चाहता है? भरत जी, आप पढ़ना चाह रहे थे पहले. Who asked this question? This is a question that I prepared, Prabhu, on behalf of others. Oh, okay. Then you read. Okay. यह यह, हाँ भरत जी Why? पढ़िए, आप पढ़िए. नहीं, भरत जी आप पढ़िए. यह अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है. यदि इसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है तो यह प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है. यद्यपि यह यथार्थ नहीं है, किंतु यह अत्यधिक प्रबल होता है. यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है. हे राजन, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए. इसे अत्यंत सतर्कता से करें. हरि बोल. Very good. So you see how the power of the mind, huh? तो आप देख सकते हैं मन की शक्ति. The mind is very, very powerful. बहुत शक्तिशाली है हमारा मन. Cannot control this mind. आराम से इसको हम संयम में नहीं रख सकते. Yes. हाँ. So you think it is easy to control the mind? क्या आपको लगता है आसान है मन को अपने वश में करना? What do you say? क्या कहते हैं आप लोग? हाँ ना. मन को संयम करना आसान है? No, not at all. बिल्कुल नहीं. Can you read the purport of this verse? हाँ, भरत जी इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं आप. हाँ जी. जिस एक अस्त्र से मन, जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है वह है उपेक्षा. मन सदैव हमें इसे अथवा इसे कर लेने के लिए कहता है. अतः हमें मन के आदेशों की उपेक्षा करने में पटु बनना चाहिए. मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए. मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना है. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जगने के बाद तथा सोने के पूर्व नित्य ही मन को कई बार जूतों से पीटना चाहिए. इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है. समस्त शास्त्रों का भी यही आदेश है. यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो वह मन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है. दूसरी प्रामाणिक विधि है गुरुओं की आज्ञाओं का कठोरता से पालन करना और ईश्वर की सेवा में लगे रहना. इससे मन स्वतः वश में आ जाएगा. श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को उपदेश दिया है कि आप सीधे वो पढ़ सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं प्रभु. हाँ. जब गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान. जब गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त होता है तो मनुष्य का असली जीवन प्रारंभ होता है. यदि वह गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो कृष्ण के अनुग्रह से वह मन की दासता सेवा भाव से मुक्त हो जाता है. बहुत इस अच्छा. प्रकार. हाँ. So this finish. Yes, प्रभु. Yes. So this is the process how to control the mind, seva to Krishna and Guru. तो आप ये देख सकते हैं ये तरीका है कैसे मन को संयम में रखा जाए. भगवान की सेवा, गुरु की सेवा. Yes. So the Kali Yuga, first and foremost thing to do now is to chant this Maha Mantra, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इसलिए ये कलयुग में, सॉरी please translate. इसलिए ये कलयुग में सबसे जरूरी और सबसे पहला काम है कि आप कृष्ण महामंत्र का जाप करें. So if we can do this chanting very regularly, अगर आप ये जप बराबर से कर सकते हैं, रेगुलरली कर सकते हैं, and by reading Prabhupada's books, और श्रीला प्रभुपाद की किताबें पढ़ के, very quickly you will develop this faith बहुत जल्दी आप में आस्था आएगी
to get the mercy of Prabhupada, कि आपको श्रीला प्रभुपाद की मर्सी मिले, Param Guru, परम गुरु, and then you will get Krishna Kripa easily. और आपको कृष्ण की कृपा भी बहुत आसानी से मिलेगी. And even if you are hell or heaven, it doesn't matter then. उसके बाद फिर स्वर्ग हो नरक हो, वो उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. It doesn't matter. नहीं फर्क पड़ता. Because for you, you have Krishna, then where you go to heaven or hell, what does it make any difference for you? अगर आपके पास कृष्ण जी है, उनसे आपका संपर्क बनता है, तो क्या फर्क पड़ता है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं कि नरक जा रहे हैं? Yes. हाँ, ना. Can you go to this verse 6, 17, 28? Yes, Prabhu, I am there. Okay, read. कोई और पढ़ना चाहता है? क्षमा आप पढ़ेगी? आनंद में पढ़ूं? हाँ, पढ़िए क्षमा, पढ़िए. पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवश्य से भयभीत नहीं होते. उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं. बहुत अच्छा, very good. Can you read the purport? हाँ, क्षमा आप तात्पर्य पढ़िए. थोड़ा बड़ा होगा, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे पढ़िए. ये स्वाभाविक है कि पार्वती ने पूछा हो कि भक्त इतने महान कैसे बनते हैं. इस श्लोक में बताया गया है कि भक्त लोग नारायण पर होते हैं. वे जीवन की विफलताओं की परवाह नहीं करते, क्योंकि नारायण की सेवा करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पाई है. उन्हें इसकी परवाह नहीं हो रहती कि वे स्वर्ग में या नरक में, वे केवल ईश्वर की सेवा करते रहते हैं. यही उनकी श्रेष्ठता है. अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, वे मुक्त रूप से ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होते हैं, अतः वे श्रेष्ठ हैं. भगवान शिव ने भ्रात्यानाम शब्द का व्यवहार करके यहाँ संकेत किया है कि यद्यपि चित्रकेतु ने सहिष्णुता तथा श्रेष्ठता का या आदर्श उपस्थित किया है, किंतु जितने भी भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है, वे सभी यशस्वी हैं. उन्हें इसकी तनिक भी इच्छा नहीं कि वे स्वर्ग में रहकर सुखी बने और मुक्त होकर परम तेजोमय ब्रह्म से एकाकार हो ले. ऐसे लाभ उनको नहीं भाते. वे तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते हैं. Very nice. Prabhu, Kshama has her mother tongue is Kannada and she is reading Hindi so nicely. Can you go to 8:7? Bhagavad Gita, Prabhu? Yes. Okay. हम भगवत गीता में 8वें अध्याय में 7वें श्लोक में जा रहे हैं अब. कोई पढ़ना चाहते हैं? अतएव है अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को
भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। Who's that? Vijay Kishore, is it? Yes, Prabhu. Yes, sir. Yes, sir. He's also he's Telugu man reading Hindi. कितना अच्छा पढ़ रहे हैं प्रभु। प्रभु आपके चरण पर शरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम। Yeah. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। I am only a Singapore man who don't know Hindi. So by that way we are getting the service at least. Otherwise you yourself are going to do everything. So you can see here, Arjuna asked him to think of him. I'm sorry, Krishna asked Arjuna to think of him in the form of Krishna. And that's by chanting Hare Krishna, we do that. And at the same time, you go to work and do your work. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आप मेरा चिंतन कीजिए और उसके साथ अपना युद्ध कीजिए। तो प्रभु बता रहे हैं इसी तरह से जब हम कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपनी दिनचर्या में कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, वो महामंत्र का जाप भी कृष्ण का चिंतन करने के बराबर है। तो ऐसे ही And by doing that, you dedicating everything to Krishna, you will go to Krishna without doubt. तो इसलिए आप सब कुछ कृष्ण जी के समर्पित करें, जप करके और सारे कार्य करके, तो आप कृष्ण के घर, उनके वैकुंठ लोक जाएंगे। So no problem. कोई समस्या नहीं है। So easy. Kali Yuga, the easiest way to remember God is to chant Hare Krishna. कलयुग में सबसे आसान तरीका कृष्ण जी का चिंतन करने का है, आप महामंत्र का जाप करें। I'm sure now this is the third session, I think, yes? ये तीसरा सत्र है आप लोगों के साथ। All those people who have started from the first and they must have started chanting, yes? जो पहले सत्र से आए हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों ने जप करना शुरू किया होगा। How many of them started chanting? आप में से कितने लोगों ने जप करना शुरू किया? आप अनम्यूट करके प्रभु को बता सकते हैं। मेरे को तो 2 साल हो गए प्रभु जप करते हुए। उषा माता जी saying 2 years she has been chanting. और कौन अभी जो Okay, those people who have started from this class, how many of them have started chanting? जो अभी ये सत्र में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 3 क्लास 4 क्लासों से, उनमें से कितने लोगों ने शुरू कर दिया चैंटिंग करना, जप करना? Prabhu Kshama here. I'm not doing it very regularly. Apologies for that, but I have started. Very good. How you feel by chanting? Of course, it gives a lot of peace of mind when we do it after work. Yes. Especially. Yes, you see, this is testimony. So chanting is giving a lot of peace of mind. Yes. तो आप देख सकते हैं जैसे क्षमा ने बताया और प्रभु ने बताया कि जप करने से बहुत मन की शांति मिलती है। Unless we got peace of mind, how can we get happiness? जब तक हमको मन की शांति नहीं मिलेगी, हमें सुख की प्राप्ति कैसे होगी? Can you go to 266 Bhagavad Gita? अब हम दूसरे अध्याय में 66वें श्लोक में जा रहे हैं। What is the verse, Prabhuji? 66, 66। Nasti buddhya yuktasya. व्रज किशोर जी पढ़ेंगे? हाँ जी। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? शांति के सुख हो भी शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? सुख हो भी कैसे सकता है? वो भी कैसे सकता है? Correct. So you see, chanting is the process. तो आप देख सकते हैं जप करना ही तरीका है।
So you get connected to Krishna by chanting, and then you become very happy. And not only that, you can see, can you go to 922? हम अब 9वें अध्याय में 22वें श्लोक पर जा रहे हैं। Vijay Kishore can chant the sloka. Or even, what's his name? Akshay also can chant. Anyone, please? Prabhu, can you just repeat the shloka number? 922. 922, right? Okay. Yeah. Just a minute. Someone can chant the verse. अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। See that? You Krishna will take care of everything for you. आप देख सकते हैं कृष्ण जी सभी चीजों का ध्यान रखेंगे आपके लिए। Can you go to the last verse of the Gita, 1878? अब हम अंतिम श्लोक में जा रहे हैं। यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नेतर्मतिर्मम। Let the verse come on so you chant, they all can chant together. Yes, bro. No, bro, not this one. 1878. Yes. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नेतर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। So you keep Krishna in the heart by chanting Hare Krishna, you get all these things. तो आप कृष्ण जी को अपने हृदय में रखते हैं और जप करते हैं तो ये सारी चीजें आपको उपलब्ध होंगी। Yes. हाँ। Now everybody wants protection because they are very frightened, correct? अभी के माहौल में सबको सुरक्षा चाहिए क्योंकि सब लोग भयभीत हैं। Correct? सही है? हाँ? No. नहीं चाहिए। Yes. Yeah? Yes. Yes. So Krishna says, if you chant, I give you protection. Can you go 931? 931. हम 9वें अध्याय के 31वें श्लोक पर जा रहे हैं। Prabhu, I read. Akshay, you can read. Yeah. And the sloka. Yeah. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। See, मेरे भक्ता विनाश कोई नहीं है। हाँ? Can you see that? आप देख सकते हैं? So how many things you are getting by just opening the mouth and saying Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो आप देख सकते हैं, you translate? आप देख सकते हैं आपको कितनी चीजों का लाभ होता है सिर्फ इतना ही करके कि आप अपना मुख खोलें और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। Yes.
हाँ, Yes. So who is the person who won't want to chant? तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो जप नहीं करना चाहेगा? He must be a greatest fool. वो बहुत ही मूर्ख होगा, सबसे बड़ा मूर्ख होगा. बड़ा मूर्ख होगा. Oh, Yes. Hindi is very sweet when you speak. Anyway, I think we are getting the message across. आशा करते हैं कि आपको जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, ये आपको समझ में आ रहा है. Yes. हाँ, Yes. हाँ, Yes. हाँ जी प्रभु. Yes. Yes, Hanji, yes. So therefore, we should not waste time. इसलिए हमको समय व्यतीत नहीं करना चाहिए. Can you go to Srimad Bhagavatam 2:9-36? Can you go to the purport towards the end? Quite a long purport. Very long purport, you know. Yeah. You can see the last paragraph when you come the bottom up. Yes, Prabhu. You can see the verse there. It says, Sa Hanistan Vishnu Puranam. In the Vishnu Puranam is written. Just a minute, Prabhu. I just go. Last paragraph you said, Prabhu, right? These Last also paragraph you go up. together they are written, and the second one is from Vishnu Puran. Vishnu Find two Puran. verses. Yam Vaish Vrinute Ten Labhya. No, That one, this is Prabhu? not the one. The heading itself is given in the Vishnu Puran. It is written like that. It is written there. Okay, I am now at the end of the purport of. Oh, you go a little bit up, Prabhu. It was 36, right? Verse Now, 36. yeah, we are in 36. Go to the bottom. Bottom we did not find it, Prabhu. So I'm just trying. Yeah, to little bit up you go, Prabhu. Little bit up you go. Vishnu Puran. Let me try to find. Karun Puran. After this number, go up. Up more, up. Here we are not finding. Go up. Etan Nirvidyamananam. You go there. You can see Srimad Bhagavatam 2:1. Somehow that one, the last one, it is showing Kathopanishad. So, Akshay Prabhu, आपको दिख रहा है कहीं? I think, Prabhu, you need to go up. Up, ऊपर, हाँ? Oh, okay. Katha Upanishad is the last verse, you know. You go higher up. I'll stop you. You go, Prabhu. ठीक है. Yeah, after this, up some more. Yeah, the next one. Next one. Yeah. Okay, read this one. Read अक्षय the प्रभु पढ़िए, आप translation. पढ़ना चाहते हैं? Yes, Prabhu. यदि एक क्षण के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का स्मरण नहीं किया जाता, तो यह सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ी विडना है. जीवन की समस्त अवस्थाओं में भगवान पूजे जा सकते हैं. उदाहरणार्थ महाराज प्रहलाद तथा महाराज परीक्षित ने अपनी माताओं के गर्भ में भी भगवान की पूजा की. प्रभु, my voice is clear? Yes. ध्रुव महाराज ने केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान की पूजा की. महाराज अम्बरीश ने अपनी पूर्ण युवावस्था में भगवान की पूजा की और महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी वृद्ध आयु में अत्यंत विकसित अवस्था में भी भगवान की पूजा की.
अजामिल ने मृत्यु के सन्निकट रहते हुए भी भगवान की पूजा की और चित्रकेतु ने स्वर्ग तथा नरक में रहकर भी भगवान की पूजा की। नृसिंह पुराण में कहा गया है कि जब नरक में रहने वालों ने भगवान के पवित्र नाम का जप प्रारंभ किया तो वे नरक से स्वर्ग जाने लगे। दुर्वासा मुनि ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। केवल भगवत नाम जप से नरक के वासी अपनी अपनी नारकीय यातना से मुक्त हो गए। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को जो उपदेश दिया गया उसका निष्कर्ष श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है। तो shall I read the verse translation also after that? Just read to the end. No? Read to the end. O king, it is finally decided that everyone. You want me to read that? Yeah, read Vazaham. हे राजन, अंततः यह तय हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी हो, योगी हो अथवा सकाम कर्मी हो, वांछित फल की प्राप्ति के लिए निर्भय होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न शास्त्रों में अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया गया है। नंबर 1, भले ही कोई समस्त वेदों तथा शास्त्रों में निष्णात हो, किंतु यदि वह परमेश्वर का भक्त नहीं है तो वह नराधम माना जाता है। दूसरा, गरुड़ पुराण, ब्रह्मनारदीय पुराण तथा पद्म पुराण में भी इसी की पुनरावृत्ति की गई है। जो भगवत भक्ति से रहित है उसके वैदिक ज्ञान तथा तपस्या से क्या लाभ। तीसरा, हजारों प्रजापतियों की एक भगवत भक्त से तुलना कैसी। चौथा, सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में कहा है कि भगवत भक्ति के बिना न सन्यासी, न ही दयालु प्रसिद्ध व्यक्ति, महान दार्शनिक, महान तांत्रिक या अन्य कोई भी व्यक्ति वांछित फल नहीं पा सकता। छठा, भले ही कोई स्थान भले ही कोई स्थान स्वर्ग से भी अधिक महिमामय हो, किंतु यदि वहां वैकुंठ के स्वामी या उनके भक्त की महिमा का गान नहीं होता तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। छठा, शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगे रहने के लिए 5 प्रकार की मुक्तियों को अस्वीकार कर देते हैं। अतः अंतिम निष्कर्ष यही है कि सर्वत्र तथा सर्वदा भगवान की महिमा का गान होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उसकी महिमा का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करें, क्योंकि जीवन की परम सिद्धि अवस्था यही है। सकाम कर्म तो भोग्य शरीर तक सीमित है, योग शक्तियों की प्राप्ति तक, योग शुष्क दर्शन दिव्य ज्ञान की उपलब्धि तक, और जहां तक दिव्य ज्ञान का संबंध है वह मोक्ष लाभ तक सीमित है। यदि इन सब को संपन्न किया भी जाता है तो इनके मार्ग में त्रुटियां के होने की संभावना रहती है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति को ग्रहण करने की न तो कोई सीमा है, न ही नीचे गिरने का कोई भय है। भगवत कृपा से यह विधि स्वतः अंतिम अवस्था को प्राप्त होती है। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में ज्ञान आवश्यक है, किंतु उच्चतर अवस्था में ऐसे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः उन्नति का सर्वोत्तम तथा निश्चित पथ भक्ति योग ही है। कभी कभी श्रीमद् भागवत के उपर्युक्त 4 श्लोकों के निचोड़ का उपयोग निर्विशेषवादी अपने पक्ष के समर्थन हेतु करते हैं, किंतु ध्यान देने होगा कि इन 4 श्लोकों का वर्णन सर्वप्रथम श्री भगवान ने स्वयं किया था। अतः भगवान के विषय में कोई धारणा न होने से निर्विशेषवादी को उनमें प्रवेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः इन श्लोकों के निचोड़ की निर्विशेषवादी चाहे जो भी व्याख्या करें, वह ब्रह्मा से प्राप्त शिष्य परंपरा में दीक्षित व्यक्तियों द्वारा मान्य नहीं होंगे, जैसे कि निम्नलिखित श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त श्रुति पुष्टि करती है कि जिसे अपने शैक्षिक ज्ञान का गर्व होता है उसके समक्ष श्री भगवान कभी प्रकट नहीं होते। कठोपनिषद में श्रुति मंत्र का स्पष्ट कथन है, यह सारी बात श्री भगवान स्वयं कहते हैं। अतः जिसकी पहुंच भगवान के सगुण रूप तक नहीं है, वह श्रीमद् भागवत के सार को शिष्य परंपरा में किसी भागवत से शिक्षा ग्रहण किए बिना शायद ही समझ सके। हरि बोल। Can you go to 627? Can someone read this one? And the purport? देवकी माता जी, आप पढ़ना चाहती हैं? यस प्रभु। हाँ माता जी। अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। दरअसल उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए किया है, क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से वह उच्चारण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया है, इसीलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। तात्पर्य यमदूतों ने अजामिल की केवल बाह्य स्थिति पर ही विचार किया था। चूंकि वह आजीवन अत्यधिक पापी था, अतः उन्होंने सोचा कि उसे यमराज के पास ले चलना चाहिए। वे यह नहीं जानते थे कि वह अपने समस्त पापों के फलों से मुक्त हो चुका था। इसीलिए विष्णुदूतों ने आदेश दिया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया था, अतः वह सारे पाप फलों से मुक्त कर दिया गया था। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्मृति शास्त्र से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। हरि का एक पवित्र नाम लेने मात्र से पापी मनुष्य जितने पाप कर सकता है, उससे अधिक पापों के फलों का निराकरण कर सकता है। बृहद विष्णु पुराण। यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छा से ही क्यों न हो भगवान नाम का उच्चारण करे, तो उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाते हैं जिस तरह सिंह की दहाड़ से सारे छोटे छोटे पशु डर कर भाग जाते हैं। गरुड़ पुराण। हरि के 2 अक्षरों ह तथा री के एक बार उच्चारण करने से मनुष्य का मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। स्कंद पुराण। ये कुछ कारण हैं जिससे विष्णुदूतों ने यमदूतों को अजामिल को यमराज के न्यायालय में ले जाने से मना किया। कितना बढ़िया पढ़ा आपने। Can you go? Yes प्रभु। Which one? Can you go to 15? 6 to 15. माता जी पढ़िए। यदि कोई हरि नाम यस प्रभु। यदि कोई हरिनाम का उच्चार करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से यथा छत से गिरने, फिसलने या सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाने, सर्प द्वारा काटे जाने, पीड़ा तथा तेज ज्वर से आक्रांत होने या हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों न हो, नरकीय जीवन में प्रवेश करने से वह तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। प्रभु तात्पर्य। Yeah, you can read. तात्पर्य जैसा कि भगवत गीता 8.6 में कहा गया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यदि कोई कृष्ण मंत्र के कीर्तन का अभ्यास करता है, तो जब वह किसी दुर्घटना से ग्रस्त होता है,
तो स्वभावतः आशा की जाती है कि वह हरे कृष्ण कीर्तन करेगा, किंतु ऐसे अभ्यास के बिना भी यदि दुर्घटनाग्रस्त होते समय या मरते समय कोई किसी भी रूप में भगवान हरे कृष्ण का कीर्तन करता है, तो वह मृत्यु के बाद नरकीय जीवन से बचा लिया जाता है। हरे कृष्ण। So what is the conclusion? तो क्या तात्पर्य निकल रहा है इससे? What is the conclusion? Shall we chant or not chant? क्या लगता है, क्या तात्पर्य है, हमें जप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। करना चाहिए। करना चाहिए। करना चाहिए। We should do. करना चाहिए। Very good. All right, it's already almost 2 hours from now, 10 o'clock here. Yes, Prabhu. Any other last questions or what? Tell me. I'm just trying to see the chat, Prabhu. अक्षय प्रभु कोई क्वेश्चन है क्या चैट में? मैं भी देख Yes, रहा हूँ I साथ think में। Dushyant Prabhu has written one question. He's speaking about Shikshashtakam, the verse Trinadapi Suni Chena. So I'm just trying to read his whole comment. Okay. Okay, अक्षय प्रभु आप देखिए, आप तब तक उसको अगर ट्रांसलेट करना चाहें तो आप ट्रांसलेट। Okay, so I've understood. So what Dushyant Prabhu is saying, he's saying that this Trinadapi Suni Chena, so the emotion behind this verse, so it is not very easy to obtain this emotion that you become like a tree and you become like grass because of this false ego that we have. So how can we get rid of such an emotion, such a false ego state where we cannot come to this position? To get rid of false ego, you need a guru. अगर आपको अहंकार से मुक्त होना है तो आपको गुरु की जरूरत है। अक्षय प्रभु, maybe if you can translate the question briefly in Hindi also, then it helps others. Yes. And you can give a little bit of background of the shloka that he has talked of, then people will know what is the context of the question. Yes. तो आप देखिए, दुष्यंत प्रभु ने एक प्रश्न पूछा है श्री शिक्षा अष्टकम में से। ये प्रार्थना है जो श्री चैतन्य महाप्रभु, हमारे संप्रदाय के जो गुरु है, उन्हें उनके द्वारा दी गई है, जो स्वयं श्री राधा और कृष्ण हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा अष्टकम के श्लोक दिए हैं, जिसमें से ये श्लोक है त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। इसका अर्थ ऐसे है कि त्रिनादपि सुनी चेना, कि आपको जो है एक तिनके से भी अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए, और आपको तरोरपि सहिष्णुना, एक वृक्ष से भी अधिक आपको सहिष्णु होना चाहिए, मतलब सहनशील होना चाहिए। इस अवस्था में जब आप आ जाते हैं तब आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। और जब आपको खुद के स्वयं के मान की चिंता नहीं रहती और आप दूसरों को मान देना चाहते हैं, इस अवस्था में आकर आप भगवान के श्री नामों का जप कर सकते हैं। तो प्रभु का प्रश्न यही है, दुष्यंत प्रभु का, कि हम इस अवस्था में कैसे आए, क्योंकि जो हम मिथ्या अहंकार के वश में हैं अभी, और हम यह सोचते हैं कि हम कितने बड़े हैं, तो इस अवस्था में आना कोई आसान काम नहीं है। तो हम इस अवस्था में कैसे आए और भगवान के लिए अपना प्रेम हम कैसे जागृत करें। So nicely translated. Thank you, Prabhu. Can you go to 11:28:17? अब हम श्रीमद् भागवतम में हैं, 11वें कैंटो में, और हम उसके 28वें चैप्टर में हैं और 17वें श्लोक में हैं। 17 श्लोक है प्रभु, राइट? अमूलम एतत्, that one प्रभु, अमूलम एतत् बहुरूप रूपितम। I think Prabhu has got some network issue, it seems. This is the verse, Prabhu. 17. Yes, Prabhu, we are on that verse. यद्यपि मिथ्या अहंकार का कोई यथार्थ आधार नहीं है, किंतु यह अनेक रूपों में देखा जाता है, यथा मन, वाणी, प्राण,
तथा शरीर के कार्यों के रूप में, किंतु प्रामाणिक गुरु की उपासना के द्वारा तेज की हुई दिव्य ज्ञान रूपी तलवार से गंभीर साधु इस मिथ्या पहचान को काट देता है और इस जगत में समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निवास करता है। Does it say there you must worship the spiritual master? क्या हम कहते हैं यहाँ पे कि आपको प्रामाणिक गुरु की उपासना करनी चाहिए? Yes. So if you want to cut off your ahankar, you must have a guru. तो इसलिए अगर आपने अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको एक प्रामाणिक गुरु आपके पास होना चाहिए। Otherwise, you will take your mind as your guru. अगर अन्यथा आप अपने मन को ही अपना गुरु मानने लगेंगे। And if you take your mind as a guru, you will have many problems. और अगर आप अपने मन को ही गुरु मान लेंगे तो आपको काफी सारी समस्याएं आएंगी। So the Tanadapi verse can only be done if you have a spiritual master. तो इसलिए जो त्रिनादपि शुनिचेन जो श्लोक है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास एक प्रामाणिक गुरु की कृपा हो। Yes? हाँ? Yes, Prabhu. Okay. Anything else? और कोई प्रश्न किसी का? So how to stop angerness when a person chanting? Keep chanting. Means Prabhu, someone disturb when a chanting. Mean you are chanting, but someone disturb you when a chanting. So you keep chanting. Don't get disturbed. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. So, all right. Anything else? We have to say thank you again to all of you. और कोई प्रश्न है तो बताइए अथवा प्रभु सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। I hope you feel benefited by this class. आशा है कि आपको इस सत्र से इस क्लास से आपको लाभ उठ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? Yes, Prabhu. जी प्रभु। Yes, Prabhu. Yes, Sure. Prabhu. Definitely, Prabhu. Yes. So thank you again. I wish that hope you will bring more friends. Yeah. आशा करते हैं कि आप अपने और साथियों को लाएंगे इस सत्र में। Or you feel good, you can circulate this video to all your other friends who are not here. या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो जब हम YouTube का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे तो आप अपने और सभी साथियों के साथ उसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें। And if you have still not got the Bhagavad Gita you can buy from Akshay Prabhu. और अगर आपने अभी भी अपनी भगवत गीता नहीं ऑर्डर की है तो आप अक्षय प्रभु से संपर्क करें और उनसे अपनी भगवत गीता लें। Also you can purchase the Japamala and start chanting Hare Krishna. आप जपमाला भी खरीद लें और जप करना शुरू करें हरे हरे कृष्ण का महामंत्र। That way you will make more and more spiritual advancement. इस तरह से आप अपनी आध्यात्मिक तरक्की, आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। So धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। Is it okay if I ask someone to just do a little bit of thanks? Vote of thanks. Is it okay, Prabhu? Yes. भरत प्रभु आप हाँ बोलिए प्रभु। Prabhu, actually, when I read the Gita, Shloka, chapter 3, 37. I can't understand the 37 Shloka. That I'm going to tell him personally. या विश्वजीत प्रभु, ये मैं आपको खुद अभी थोड़ी देर में आपको मैसेज करके समझा दूंगा। Prabhu, you are here. Sorry, Prabhu. Yes. I see you are not here. Yeah, Prabhu. Thank you, Prabhu. हाँ, तो आप ऑफलाइन उसको डिस्कस करें। हाँ, आप ऑफलाइन डिस्कस करें। भरत प्रभु, I know this is not planned, but can you speak a few words as part of vote of thanks if you are there? आपको कैसा आभास हुआ क्लास में? आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ जी। हाँ।
थोड़ा अगर माइक के पास आ सकते हैं आप, थोड़ा सा 2 मिनट आप अगर हाँ, प्रेसिडेंट प्रभु के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत। मैं दो दो और तीन ये क्लास ज्वाइन किया, तो अ, कुछ अंदर से अच्छा लगता है कि भाई कृष्ण की बातें होती है, भगवत गीता का कुछ पठन होता है, तो मन को थोड़ी शांति मिलती है। वो तो ये गीता का कुछ प्रभाव है, भगवत गीता का, और अच्छा लगता है बस। हरे कृष्ण। Prabhu, he's saying that he has attended 2-3 classes now. Actually, he has attended 4 classes, I remember. And he says that he likes coming to the class because he gets to hear from the Bhagavad Gita. He likes to listen to it, and he also gets a lot of peace of mind. So he wants to share his vote of thanks to you. Thanks for your time, and thanks for enlightening us with all of this knowledge and wisdom. Hare Krishna. हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो So, हम यस प्रभु, यस प्रभु। any more? और कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ प्रकट करना चाहते हैं, कुछ आपको कैसा महसूस होता है क्लास में आके? Anyone else wants to express anything? प्रभु बहुत ही अच्छा महसूस होता है आपकी क्लास में, आध्यात्मिक। He likes it. He says very nice. He finds it Prabhu, very I can't spiritual. explain the atmosphere of the class and the impact of the class on my mind and my body. The spiritual life increase when we see your class and when we see your lecture. You do fabulous work, Prabhu. I think because you were there, that's why Krishna is speaking. आप Prabhu, हैं इसलिए कृष्ण जी बोल रहे हैं। Prabhu, my one question is, Prabhu, can you hear me? Yes. Prabhu, one minute, Prabhu. Mm. 1 minute, Prabhu. Prabhu has been running a doubt in my mind for a few days. Can I become a good Vaishnava like my ancestors? My last 5 generations are doing devotion to Krishna, and I'm a 6th generation. And I born in a Vaishnava family in a Braj Mandal. This is my last life karma. That I don't know, but if you chant Hare Krishna, for sure it will be your last life. प्रभु ये तो नहीं कह सकते, मगर आप अगर हरे कृष्ण का जाप करेंगे तो जरूरी ये आपका अंतिम जीवन होगा। Anyone who chants Hare Krishna, they will go home back to Godhead. जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे वो वैकुंठ लोक Prabhu, जाएंगे। some person say you are a 18 years old person. Why you do the chanting? You do the Mayavadi things. I say I am do the light things. One person says, "Arey, you do these things. You become Vaishnava. Why you do chanting?" And this is why you are destroy your teenager life. And this is for the old age person. So you tell him, if I am teenager, I shouldn't do. You are older, then why you not doing? आप ये कह सकते हैं, कोई अगर आपसे ये कहता है कि आप अभी युवा अवस्था में हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर कोई वृद्ध पुरुष आपसे कहता है तो आप उसको पलट के कह सकते हैं कि आप तो वृद्ध हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? So this is the problem. They don't want to Prabhu, a chant and they person- don't want to have anybody chanting. Huh? Prabhu, when our family go to Delhi, a person says, your child doing chanting, one day your child become a saint and destroy your life. How can you be a saint and destroy someone's life? You say when your child become a saint, they live forever you and destroy your life. If he gets married, he also will live forever. What about So that? Prabhu, why the Mayavadi person are the disturb the Krishna consciousness?
You don't I worry, can't you understand. you preach to them, you just have to preach strongly. Everybody is talking, so we should also talk. Who talks louder, they become stronger. You understand? You should know how to argue. You can translate this. आप अगर जो मायावादी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, वो अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, तो आपको भी उनके साथ तर्क करना होगा, समझाना होगा। जो ज्ञान है उसको लेके आपको वितर्क करना होगा, और उसके बाद जैसा प्रभु बता रहे हैं इस तर्क में, जो अपना तर्क अच्छे से रख पाएगा उसके कथन की सुनवाई होगी। तो आप हताश नहीं हो, और आप इस तरह से अपने आप को दृढ़ करें। Okay, huh? Thank you very Yes, much. Prabhu. Hare Krishna, all Prabhu. glory हरे to कृष्णा, Prabhupada. दंडवत Hare प्रणाम। Thank you, Guru. हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू, Hare दंडवत Krishna. प्रणाम।